Good afternoon, children. Welcome to the third part of chapter 1. Today we'll discuss about fertilizers, irrigation, sources of irrigation, traditional methods of irrigation, modern methods of irrigation. I'll read on page 6th from fertilizer and here. Fertilizers are chemicals which are rich in a particular nutrient. How are they different from manure? See, as I told you in previous part also that fertilizer and manure both are important for the growth of plant. Why manure and fertilizer are added to the crop to increase the fertility and growth of the plant. See, as we know that manure is organic substance. Fertilizers are inorganic. They are chemicals which are rich in particular nutrient. Fertilizers are produced in factories. Some examples of fertilizers are urea, ammonium sulfate, superphosphate, potash, NPK, that is nitrogen, phosphorus, potassium. The use of fertilizer has helped farmers to get better yield. Yield means growth of crop such as wheat, paddy and maize. Paddy is rice. But excessive use of fertilizers has made the soil less fertile. अभी देखो फर्टिलाइजर को अगर आप ज़्यादा यूज़ करते रहोगे तो उसकी फर्टिलिटी कम हो जाएगी. फर्टिलाइजर्स हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन. ज़्यादा फर्टिलाइजर से क्या होगा कि हम जो क्रॉप्स को पानी देते हैं तो वो पानी को पल्यूट कर देगा. Fertilizer, therefore, in order to maintain the fertility of the soil, we have to substitute fertilizer with organic manure or leave the field uncultivated in between two crops. जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था व्हाट इज अनकल्टिवेटेड, मतलब एक बार अगर क्रॉप ग्रो हो जाता है उसको हार्वेस्ट करते हैं, फिर 3-4 मंथ्स के लिए उसको एज इट इज छोड़ दो, उसको रिप्लेनिश करो, दैट इज कॉल्ड अनकल्टिवेटेड. इससे क्या होगा, सॉइल की फर्टिलिटी रीगेन हो जाएगी. The use of manure increase soil texture. Texture is quality as well as its water retaining capacity. Water retaining capacity is what? Water holding capacity. It replenishes the soil with nutrients. Now, another method of replenishment the soil with nutrient is through crop rotation. अभी crop rotation में क्या होता है बच्चों कि this can be done by growing different crops alternatively. जैसे see for example, this year first we have grown in field wheat, then second time the field in field will grow any pulse. एक बार wheat ग्रो किया फिर दूसरी बार pulse ग्रो किया, तो इससे क्या है क्रॉप रोटेशन होगा, उससे सॉइल को ज़्यादा दूसरे डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे और सॉइल ज़्यादा रिप्लेनिश हो जाएगी. दैट इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन. दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स ऑल्टरनेटली. Earlier farmers in northern India used to grow legumes. Legumes are all pulses and all that as fodder in one season and wheat in next season. मतलब एक सीजन में कोई पल्सेस ग्रो किया तो दूसरी सीजन में व्हीट ग्रो करते. इससे क्या होता है इसके वो सॉइल को हर तरह के न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं. These help in the replenishment of soil with nitrogen. Farmers are being encouraged to adopt this practice. ज़्यादातर फार्मर ऐसा करते हैं ताकि उनका क्रॉप अच्छा ग्रो हो. इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्नड अबाउट राइजोबियम बैक्टीरिया. दीज आर प्रेजेंट इन नोड्यूल्स ऑफ रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स. दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. वी नो व्हाट आर राइजोबियम बैक्टीरिया चिल्ड्रन. राइजोबियम बैक्टीरिया एक टाइप के बैक्टीरिया होते हैं जो सॉइल में नाइट्रोजन का प्रपोर्शन ज़्यादा इंक्रीज करते हैं. वी हैव लर्न दैट इन 7th standard. So this is the difference between fertilizer and manure. Now I will read here advantages of manure. The organic manure is considered better than fertilizer. This is because organic manure जो होता है वो क्यों ज़्यादा अच्छा है fertilizer से? Why? Because it enhances the water holding capacity of the soil. Organic manure यूज़ करने से क्या होगा कि पानी की water holding capacity है वो increase हो जाएगी. Enhances means helps. It makes the soil porous due to which exchange of gases become easy. Soil को ज़्यादा loose और porous बनाता है ताकि exchange of gases अच्छे से हो.
इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स को इंक्रीज करता है. इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल. सॉइल की क्वालिटी, टेक्सचर इज व्हाट क्वालिटी ऑफ द सॉइल. सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर. फार्मर्स जनरली यूज मोर ऑर्गेनिक मैन्योर in more proportion and fertilizer in less proportion. Now we'll go on irrigation. What is the meaning of irrigation? Irrigation is watering the plants. हम plants को जो भी पानी देते हैं, घर पे दो या crops को field में दो या garden में दो, that is called irrigation. Now I will read 1.6 irrigation. All living beings need water to live. Water is important for proper growth and development. See, as we know that water is important for all living beings. हमको भी पानी बगैर नहीं चलता, वैसे हर एक लिविंग बींग को पानी चाहिए. वैसे प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग थिंग्स, सो दे नीड वाटर. वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट रूट्स. पानी हम जब डालते हैं क्रॉप्स में तो पानी कहाँ जाता है? उसके रूट्स में जाता है. अलॉन्ग विथ वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स आर ऑल्सो एब्जॉर्ब. पानी के साथ साथ मिनरल्स और फर्टिलाइजर्स भी रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं. Plants contain nearly 90% water. Water is essential. Why it is necessary? Essential मतलब जरूरी. Water is essential because germination of seed does not take place under dry condition. अभी घर पे ही देखो, आपके घर पे जैसे कि तुलसी प्लांट है तो मम्मी एवरीडे उसको वाटर देती है. अगर नहीं देगी तो the plant will die. Why? Because watering plants only will germinate the roots और वो अच्छे से grow होगा. Nutrients dissolved in water are transported to each part of plant. Water also protect the crops from both frost and hot air currents. मतलब पानी क्या होता है? ठंडी और गर्मी दोनों से प्लांट को बचाता है. To maintain the moisture of soil, the healthy crop growth, field have to be watered regularly. इसलिए रेगुलरली पानी डालना पड़ता है. The supply of water to crops at regular interval is called irrigation. The time and frequency of irrigation varies from crop to crop. मतलब के हर एक क्रॉप की टाइम और पानी डालने का जो होता है वो वेरिएशन में होता है, डिफरेंट होता है. कोई कोई प्लांट, कोई कोई क्रॉप होते हैं उसको ज़्यादा पानी चाहिए, कोई कोई को कम पानी चाहिए. इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर इज हायर. समर में ज़्यादा पानी चाहिए. वाई? बिकॉज सॉइल एब्जॉर्ब्स मोर वाटर. Why is it so? Could it be due to the increased rate of evaporation of water from the soil? Yes. पानी जल्दी evaporate हो जाता है तो plants सूखे हो जाते हैं, the leaves. Now, sources of irrigation. हमको कहाँ कहाँ से पानी मिल सकता है? The sources of water for irrigation are wells, tube wells, ponds, lakes, rivers, dams and canals. यहाँ से हमको पानी मिलता है. Turn page back, page 18. Now see, these are the traditional methods of irrigation. ये सारी जो है वो ट्रेडिशनल मेथड है. ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता है बच्चों कि पहले के ज़माने में इस तरह से पानी देते थे. I'll explain you. This is moat. This is 1.4 BS chain pump. This is Thekli and this is Rahat. Okay. Now, traditional method of irrigation. The water available in lakes, wells and canal is lifted up by different methods in different region for taking to the field. Cattle or human labor used in this method. So these methods are cheaper but less efficient. Less efficient. ये methods cheap है, सस्ती है, लेकिन less efficient क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत मेहनत पड़ती है और बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, फटाफट नहीं हो सकता और पानी का वेस्टेज भी ज़्यादा होता था. सो द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर मोट, दैट इज पुली सिस्टम. देखो मोट में कैसे है, इस तरह से वेल में से पानी निकाल के फील्ड के बाजू में होता है और पानी पूरे प्लांट्स को देते हैं. देन इन चेन पंप इट इज़ लाइक दिस वे. सी वाटर इज रिमूव फ्रॉम हियर एंड फील्ड में जाता है. मतलब इसमें पानी का वेस्टेज ज़्यादा होता है. Now you can see Thekli. Then this is Rahat. It is pulled by bullock. जैसे जैसे ये सर्कल घूमेंगे वैसे यहाँ से बकेट ऑफ वाटर फिल होती है और पानी स्प्रिंकल होता है, लेकिन इसमें इक्वल अमाउंट ऑफ पानी नहीं जाता. दैट इज वाई दीज ट्रेडिशनल मेथड आर लेस एफिशिएंट. नाउ
Pumps are commonly used for lifting water. Diesel, biogas, electricity and solar energy is used to run this pumps. जैसे कि हम लोग मोटर बोलते हैं उससे ये चलता है, लेकिन इसमें बहुत टाइम जाता है. Now we'll go on page 9, that is modern method of irrigation. ज़्यादातर ये अभी ज़्यादा यूज होती है. Now modern method of irrigation help us to use water economically. The main methods used are टू टाइप्स की मेथड होती है, दैट इज स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम. यू कैन सी इन फिगर 1.5a दिस इज स्प्रिंकलर सिस्टम एंड दिस इज ड्रिप इरिगेशन. नाउ स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है बच्चों, सी यू कैन सी हियर दैट वेल है, यहाँ पे एक मोटर अटैच्ड है मेन पाइप से. क्रॉप के बाजू में हर एक जगह पाइप्स होते हैं, उस पाइप में छोटे स्प्रिंकलर्स लगाए हुए होते हैं. जैसे कि गार्डन में हम लोग देखते हैं कि गार्डनर जो होता है वो पानी डालता है तो स्प्रिंकलर्स होते हैं, उसमें रोटेटिंग नोजल्स होते हैं. जैसे ही वो मेन पाइप लाइन चालू करता है तो वो रोटेटिंग नोजल में से पानी स्प्रिंकल होता है और क्रॉप के हर एक पार्ट में जाता है. ओके, सो आई रीड sprinkler system. This system is more useful on uneven land where sufficient water is not available. जहाँ पे ज़्यादा पानी नहीं अवेलेबल होता, यहाँ पे ये सिस्टम ज़्यादा यूज होती है. द परपेंडिकुलर पाइप्स हैव रोटेटिंग नोजल. जैसे मैंने बताया, सी हियर आर द रोटेटिंग नोजल, यू कैन सी हियर दीज आर द रोटेटिंग नोजल. जैसे ये ऐसे ट्विस्ट होता है उस तरह से. The perpendicular pipes have rotating nozzles on top, are joined to the main pipeline at regular interval. थोड़ी डिस्टेंस पे ज्वाइन किया होता है. It escapes from the rotating nozzle. It gets sprinkles on the crop as if it is raining. Sprinkler is very useful for lawns, coffee plantation and several other crop. Now second modern method is drip irrigation. Now drip irrigation में क्या होता है, इट इज सिमिलर टू दिस स्प्रिंकलर, लेकिन स्प्रिंकलर में जैसे ये रोटेटिंग नोजल होते हैं वैसे वहाँ यहाँ पे क्या होता है, हर एक क्रॉप के बाजू में एक एक पाइपलाइन जाती है, उसमें स्मॉल स्मॉल होल्स होते हैं. तो वो होल्स जो होते हैं वहाँ से ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी क्रॉप पे हर एक क्रॉप पे पड़ता है. सो दिस इज दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ड्रिप इरिगेशन. नाउ इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स ऑफ द प्लांट. So it is called drip system. It is the best technique for watering fruit plants, gardens and trees. Water is not wasted at all. It is a boon in region where availability of water is poor. जहाँ पे पानी कम होता है वहाँ पे ये सिस्टम बून जैसी, मतलब आशीर्वाद जैसी, और फार्मर्स के लिए ये बहुत अच्छा होता है. टर्न पेज बैक. ना प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स. अभी वीड्स को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे. ना वीड्स क्या है बच्चों, वीड्स को क्या बोलते हैं, हमने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा है. अनवांटेड प्लांट्स जो मेन क्रॉप के बाजू में ग्रो होते हैं उसको वीड्स बोलते हैं. ओके, नाउ आई विल रीड प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स. Bujo and Paheli went to the nearby wheat field and saw that there were some other plants in the field. में दूसरे plants भी थे growing along with wheat plants. In a field, many other undesirable plants may grow naturally along the crops. के साथ grow हो सकते हैं. These undesirable plants are called weeds. undesirable क्यों बोलते हैं, क्योंकि जिसकी हमको जरूरत नहीं है, जो हमारे किसी काम का नहीं है, which are not used by us, that are called undesirable plants. जो ज्यादातर मेन क्रॉप के साथ कभी कभी ग्रो हो जाता है तो उसको वीड्स बोलते हैं. उसको निकालना बहुत जरूरी है. क्यों जरूरी है, सी द रिमूवल ऑफ वीड इज कॉल्ड वीडिंग. वीड्स को जो हम निकालते हैं उसको वीडिंग बोलते हैं. वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स कम्पीट विथ क्रॉप्स प्लांट्स फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट्स, स्पेस एंड लाइट. मतलब वो मेन क्रॉप के साथ ग्रो होके उसका सारा सब कुछ ले लेता है. Thus they affect the growth of crops. Some weeds interfere even in harvesting. Cutting के वक्त भी वो हो जाते हैं कट, and may be poisonous for animals and human beings. Farmers adopt many ways to remove weeds and control their growth. Farmers जो होते हैं वो generally weeds को निकाल देते हैं ताकि main crop को harm ना हो.
टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प इन अपरूटिंग एंड किलिंग द वीड्स। टिलिंग के वक्त क्या होता है, वीड्स को निकाल देते हैं, विच में देन ड्राई अप एंड गेट मिक्सड विद द सॉइल, के साथ मिक्स हो जाता है। द बेस्ट टाइम फॉर रिमूवल ऑफ वीड इज बिफोर दे प्रोड्यूस सीड्स और फ्लावर्स। वीड्स में आ जाए उससे पहले उसको निकाल देने का, क्योंकि उसके रूट्स तब थोड़े वीक होते हैं। रेस्ट आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट पार्ट।